Hello students, in this lecture we prove property number 2. Sin inverse x is equal to x if every x belongs to domain of sin inverse x. Cos inverse x is equal to x if every x belongs to the domain of cos inverse x. Tan inverse x is equal to x for every x belongs to the domain of tangent inverse function. Cosec inverse x is equal to x for every x belongs to the domain of cosec inverse x function. Similarly, sec inverse x is equal to x for every x belongs to the domain of sec inverse x. Cot inverse x is equal to x for every x belongs to the domain of cot inverse x. Okay? Proof first property. Sin inverse function -1 to 1 so that -π/2 to π/2 से बिलोंग करता है. डिस्कस कर चुके हैं. Let sin inverse x is equal to theta for every x belong to domain, for every theta belong to range. For every theta belong to range and for every x belong to domain -1 to 1 implies therefore sin theta is equal to x for every x हमारा किससे belong करेगा -1 to 1 which is domain of sin inverse function. थीटा किसके बराबर था sin inverse x which is equal to x for every x belong to -1 to 1. Hence proof. Property 2, cos inverse -1 to 1 such that 0 to pi. Let cos inverse x become theta for every theta belong to range of cos inverse function and every x belong to domain of cos inverse function. Now cos theta is equal to x हो गया for every x belong to -1 to 1. थीटा को हमने क्या एज्यूम किया था cos inverse x. रिप्लेस कर देते हैं cos inverse x which is equal to x for every x belong to -1. क्लियर. थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं. tan inverse real to real -π/2 to π/2 open interval. Let tan inverse x is equal to theta which is for every theta belong to range of tan inverse function which is -π/2 for every theta belong to range of tan inverse function which is -π/2 to π/2 with open interval. For every x belong to domain of tan inverse function which is all real number. Okay, tan theta is equal to x for every x belong to real number. थीटा को हमने क्या माना था tan inverse x. Tan inverse x for every x belong to real number. अदर प्रॉपर्टीज आपको खुद प्रूव करनी है. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चनिंग होती है. जिस तरह क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. साइन इनवर्स 5/13. कॉन्सेप्ट क्या था हमारा 5/13 किससे बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन से. इसका डोमेन क्या था हमारा -1 to 1 क्लोज इंटरवल. ऑब्वियसली 5/13 पॉजिटिव है पहली चीज. सेकंड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. देन फ्रैक्शन लेस देन 1. देयरफॉर बिकॉज 5/13 बिलोंग टू -1 to 1. जब 5/13 इंटरवल से बिलोंग करता है दैट मीन रिजल्ट इज 5/13. अनदर एग्जांपल cos tan इनवर्स 3/4. यहाँ cos फंक्शन है, यहाँ tan इनवर्स फंक्शन है. प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कब जब यहाँ पर cos इनवर्स फंक्शन हो. लेट
tan inverse 3/4 which is equal to theta, tan theta is equal to 3/4. पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर लेंगे. 3/4 which is 5. ये थीटा माना. Therefore cos theta is equal to 4/5. Theta is equal to cos inverse 4/5. Any problem? Now therefore cos tan inverse 3/4 तो हम क्या लिख सकते हैं? cos tan inverse 3/4 किसके बराबर निकल कर आया? cos inverse 4/5. cos inverse 4/5. 4/5 belong to -1 to 1. Okay, therefore वैल्यू क्या आ गई इसकी? 4/5. Another example, cos sin inverse 1/4 plus sec inverse 4/3. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी एग्जाम के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं cos a plus b की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. cos a प्लस cos b क्या होता है हमारा? cos a cos b माइनस sin a sin b. Therefore sin inverse 1/4 cos sec inverse 4/3 minus sin inverse 1/4 sin sec inverse 4/3. साइन इनवर्स फंक्शन है, कॉस में कन्वर्ट करेंगे. सेक इनवर्स फंक्शन है, कॉस में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ जरूरी नहीं है, सेक है, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे. लेट sin inverse 1/4 is equal to suppose theta, then sin theta is equal to 1/4. पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं. 1/4. Therefore theta is equal to cos inverse √15/4. कन्वर्ट हो गया. sec inverse 1/x is equal to cos x होता है. प्रॉपर्टी है, ये हम प्रूफ कराएंगे अभी. Therefore sec inverse 4/3 is equal to cos inverse 3/4 हो गया. इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट sec inverse 4/3 कुछ सपोज हमने अल्फा कंसीडर कर लिया. sec अल्फा इज इक्वल टू 4/3. पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं. Therefore अल्फा इज इक्वल टू sin inverse √7/4. ओके, अब इन सबको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं. cos sin inverse 1/4 का मतलब cos माइनस √15/4. ओके, इनटू cos sec इनवर्स 3/4 क्या निकल कर आया था प्रॉपर्टी से? cos इनवर्स 3/4. ये तो आपका 1/4 ही हो गया. साइन sec इनवर्स 4/3. sec इनवर्स 4/3 का मतलब साइन इनवर्स √7/4. साइन इनवर्स √7/4. सॉल्व करते हैं. cos इनवर्स 15/4 लेस देन 1 है. √15/4 cos इनवर्स फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगा बिकॉज इट इज लेस देन 1. पॉजिटिव तो है ही हमारा. सिमिलरली 3/4 भी cos इनवर्स के डोमेन से बिलोंग करेगा. √7/4 भी साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगा. देयरफॉर √15
अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू √7 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 3 √15 माइनस √7 अपॉन 16। एनी प्रॉब्लम? अनदर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। साइन कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉस tan इनवर्स 1। सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इंटीरियर पार्ट को सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा साइन कॉट कॉस tan इनवर्स 1 क्या हुआ π/4। कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन कॉट इनवर्स 1/√2। ओके, अब कॉट इनवर्स 1/√2 को साइन इनवर्स फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे? लेट कॉट इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू अल्फा implies cot alpha is equal to 1/√2। ट्राइंगल बना लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। 2 + 1 3 √3 अल्फा, therefore alpha is equal to sin inverse √2/√3। okay, therefore sin इनवर्स √3। अब √2/3 एक पॉजिटिव नंबर है एंड लेस देन 1 विच इज बिलोंग टू द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। देयरफॉर 2/3 बिकॉज 2/3 बिलोंग टू द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। We take another example. Example number 5. Tan square sec inverse 2 plus cot square cosec inverse 3 is equal to 11 के बराबर प्रूव करना है। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको सॉल्व करते हैं। sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस cot cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए sec इनवर्स 2 को tan इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है, cosec इनवर्स 3 को cot इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। लेट sec इनवर्स 2 इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर sec अल्फा इज इक्वल टू 2/1। ट्राइंगल बनाया हमने विच इज √3 alpha, therefore alpha is equal to tan inverse √3/1। cot cosec inverse x इसके लिए भी हम assume करते हैं and cosec inverse 3 is equal to suppose beta, then cosec beta is equal to 3। Suppose beta, therefore beta is equal to cot inverse 2√2/1। अब इन वैल्यूज को उठाकर हम ऊपर पुट कर देते हैं। tan इनवर्स √3 होल स्क्वायर प्लस cot cosec इनवर्स 3 का मतलब क्या था हमारा cot इनवर्स 2√2/1। तो √3 tan इनवर्स फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करता है। क्यों? डोमेन क्या होता है इसका? रियल नंबर। √3 एक रियल नंबर है, देन इसे √3 का स्क्वायर। सेकेंड 2√2 एक रियल नंबर है जो cot इनवर्स के डोमेन से बिलोंग करता है। डोमेन क्या है? रियल नंबर।
2 रूट 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। रूट 3 का मीन 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 11। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ साइन cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू cos tan इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा जो अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया है। क्या साइन फंक्शन है तो cot इनवर्स x प्लस 1 को साइन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है, या cos फंक्शन है tan इनवर्स x फंक्शन को cos इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रोसेस जैसे अभी तक करते आए वही प्रोसेस फॉलो करना है। लेट cot इनवर्स x प्लस 1, cot इनवर्स x प्लस 1 become alpha, implies cot alpha is equal to x plus 1 upon 1. Now 1 x plus 1, x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। Therefore this is x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। Therefore हमको तो साइन से इनवर्स चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 and tan inverse x is equal to suppose beta, therefore tan beta is equal to x। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, इस बीटा x अपॉन 1, therefore रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। cos फंक्शन है तो cos इनवर्स चाहिए, तो उसकी फॉर्म में लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन वैल्यूज को उठाकर हम यहाँ फंक्शन में पुट कर देते हैं। Therefore sin cot इनवर्स x प्लस 1 की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारी, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू cos tan इनवर्स x की वैल्यू क्या बनी है हमारी, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन से बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल ब्रांच गिवन नहीं तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि डोमेन से बिलोंग कर रहा है। इंप्लाइज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। therefore 2x is equal to minus 1, therefore x is equal to minus half। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2013, 14 एंड 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था। cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4 है। यहाँ cos है तो इसको cot इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ साइन है तो इसको साइन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू सपोज अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू x1 बाय पाइथागोरस थ्योरम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इनवर्स की फॉर्म में डायरेक्ट लिख लेते हैं, टाइम भी आपका बच जाएगा। 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स 3/4, सपोज इसको बीटा कंसीडर किया, therefore cot बीटा इज इक्वल टू 3/4। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम 16 प्लस 9 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
16 प्लस 9 25√5, क्योंकि यहाँ साइन फंक्शन है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको डायरेक्टली हम साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं 4/5। देयरफॉर cos tan इनवर्स x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारी, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स 3/4 cot इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या निकल कर आई, साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 4/5। देयरफॉर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 टाइम 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया 25 16 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 16 प्लस 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। 2017 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। प्रूव दैट tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a। प्रूफ करना है। लेट कर लेते हैं। लेट या तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम कन्वर्ट करें tan इनवर्स फंक्शन में, इसको भी करें, वो हमें होता नजर नहीं आएगा। एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती नजर आ रही है, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज होती नजर आ रही है, यूज करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos इनवर्स a/b को कुछ एज्यूम कर लिया, सपोज थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू a/b। tan π/4 प्लस θ/2 प्लस tan π/4 माइनस θ/2। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सिमिलरली हियर tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan θ/2 1 माइनस यह 1 tan θ/2 प्लस 1 माइनस tan θ/2 1 tan π/4 1 होता है 10, एलसीएम लिया क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ये हो गया 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan θ/2 का होल स्क्वायर। ओके, tan θ/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 माइनस 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। ये पॉइंट इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर θ/2 प्लस tan स्क्वायर θ/2 2 tan स्क्वायर θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। अब देखिए 2 कॉमन निकालिए, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। अब सोचिए क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है। नोट cos a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। यहाँ पर रेसिप्रोकल आ रहा है इसका, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या थी a/b,
तो 1 अपॉन कोशेक कितना हो गया, b अपॉन ए, b अपॉन ए, देयरफॉर hence proved. Assignment number 8 based on these properties solve it. PDF फाइल हम आपको व्हाट्सअप करेंगे. ओके बाय.